There are few points to take away from this trading account. Number one is that confusion आता है, हमें questions में कई बार दिया जाता है carriage inward and carriage outward. Now what do you mean by carriage outward? Carriage outward का मतलब है sell करने के लिए हमें कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हम यूज कर रहे हैं वो कैरेज आउटवर्ड है। अगर हम चीज को लेकर आ रहे हैं तो कैरेज इनवर्ड है। द स्टॉक दैट रॉ मटेरियल दैट वी आर ब्रिंगिंग इनटू द फैक्ट्री दैट इज पार्ट ऑफ कैरेज इनवर्ड, बट इफ वी आर सेलिंग आवर फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड then that is part of your profit and loss account. So this is part of your trading account and this is part of your profit and loss account. Hello everyone, so welcome back to my channel. So today we are going to study trading account. In the last video we have studied manufacturing account and in this one we are going to do trading account. Now trading account is the next step in terms of calculating the profit. Okay, so here we go one step closer to calculating profits. So here we are talking about the trading account. Now the format looks like somewhat like this, wherein you have debit as well as credit. Then you have particulars amount in rupees and particulars amount in rupees. Now here writing rupees is also very important. Now on the debit side what we have is number one is to opening stock. Whatever stock that has come from last year or stock that was there as given to us as capital is the opening stock. So opening stock, to purchases, whatever the purchases that we have done for the stock in the current year and less the expenses. Now the expenses are the purchase returns that are there with us. So if any purchases that were returned, they are part of the purchase return. Then we have two direct expenses. Okay, so any expenses which directly impact the transition from getting the goods to the warehouse or to the factory is known as the direct expenses. कोई भी ऐसा expense जो हमें stock को लेके आने में मदद करता है into a factory is the direct expense. These expenses they're helping into for building the stock or the goods that will be later used for sales. So on the right hand side, if purchases are on the left hand side on the debit side, on the credit side we write to sales and less the sales return. If there are any sales return, मान लो हमने कुछ goods बेचे और हमारे goods वापस आए तो उसे बोलते हैं sales return. And finally by closing stock on the credit side, because closing stock is that stock that is still left unsold after the entire transition of making the trading entire year. What stock is left with us is the closing stock. Okay, now what we will do the next step, we will total both the sides, whatever the amount that is coming over here. Okay, and then now there are two situations. One situation is that we will have this side, the debit side will be lesser than the credit side. Now in that scenario अगर यहाँ पे हमें दोनों साइड को क्या करना है, इक्वल. अगर एक साइड, इस साइड मान लो जो भी एक्सपेंसेस बन रहे हैं वो इस साइड से कम है, डेबिट साइड इज लेसर इन कंपैरिजन टू क्रेडिट साइड एंड वी नीड टू बैलेंस बोथ द साइड्स. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ की बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, टू ग्रॉस प्रॉफिट. गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इफ the debit side showed all your expenses, the purchases में पैसा लगा होगा, direct expense होगा. On the credit side it shows all your income, sales हुई होगी तो इनकम आई होगी, फिर क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है. ठीक है, अगर इनकम साइड इज मोर देन योर एक्सपेंसेस साइड, इन दैट सिनेरियो प्रॉफिट होना चाहिए एज द लॉजिक सजेस्ट्स. ऑन द अदर हैंड, इफ देयर कैन बी अ सिनेरियो वेयरइन एक्सपेंसेस आर मोर देन द इनकम, सो एक्सपेंसेस, व्हेन एक्सपेंसेस इज मोर देन इनकम, यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस लॉस. तो या तो ये साइड ज्यादा होगी, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो उस महीने या फिर उस साल हमें लॉस हुआ होगा, और ऑन द अदर हैंड अगर हमारा इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंसेस से तो हमें प्रॉफिट होगा. अच्छा, क्या सवाल आता है, क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? कैन देयर बी लॉस एंड प्रॉफिट एट द सेम टाइम? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो ईदर कैन देयर बी ग्रॉस लॉस और कैन देयर बी टू ग्रॉस प्रॉफिट. स्टार मार्क मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा. Another thing over here to mention is
that gross word. Now whatever we calculate, the profit or loss निकल क्या रहा है? Profit or loss निकल रहा है in terms of expenses या income. अगर हमारा loss ज़्यादा हो रहा है, अगर हमारा gross profit या जो भी profit या loss जो भी हम calculate कर रहे हैं, उसकी value क्या है? That is the gross aspect. Okay. तो यहाँ पे trading account से हमेशा क्या निकल के आता है? Gross. On the other hand, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आता है? नेट, आफ्टर कटिंग आउट ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कट आउट हो रहे हैं वो कहाँ पे आएंगे? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में. ऑन द अदर हैंड जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे ओवर हियर. इफ योर इनकम्स आर मोर than your expenses, what will you have? You will have gross profit. On the other hand, please see, on the other hand, if your incomes they are lesser than your expenses, what will you have? Gross loss. So trading account is quite a simple account wherein we just have to calculate like we just need to show 4-5 items in here and there is nothing more than that in this account. ठीक है? कुछ ऐसा नहीं है जो हमें कंफ्यूज करेगा except for one thing which is direct expenses. अब direct expenses कौन से होते हैं? How do we know that? कौन से direct expenses हमारे पास होते हैं? This is the list of direct expenses and beyond this हमारे पास कोई direct expense नहीं होगा. Number 1 is wages. Wages वो हम किसको wages दे रहे हैं? जो लोग हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. So अगर तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया हुआ है in the question, then we will take wages in the manufacturing account क्योंकि wages लेबर को मिल रही है और लेबर हमारे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है. पर अगर उन्होंने बोला ही नहीं है अपने हमको कि आप बनाइए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो फिर हम क्या बनाएंगे? सीधा ट्रेडिंग अकाउंट. एंड इन द ट्रेडिंग अकाउंट वी आर गोइंग टू शो द वेजेस. ओके. ऑन द अदर हैंड देन वी हैव कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज, पहले जमाने में कैरेजेस यूज किए जाते थे. सो कैरेज इनवर्ड इज कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है इन ब्रिंगिंग द स्टॉक, इन ब्रिंगिंग द गुड्स इज पार्ट ऑफ योर कैरेज इनवर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट. कुछ भी अगर फैक्ट्री से रिलेटेड काम हो रहा है दैट विल कम इन योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ इफ अगेन अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज आस्क्ड, तो उस सिनेरियो में ये फैक्ट्री रेंट विल गो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और यहाँ पे नहीं आएगा. इन अ सिनेरियो वेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नॉट आस्क्ड, you will always show your factory rent in your trading account. Similarly, factory electricity if there, painting of the factory is there, कुछ भी factory से related, power and fuel used in the factory, anything which is related to your factory will also come in the trading account. And then octroi. Octroi is an expense. It's a kind of a tax that is given on your transportation. So again, transportation of what? Of stock. So that is also come here. That will also come here. And any other direct expense. कुछ और उन्होंने ऐसा लिख दिया कि direct कोई भी direct tax will come here. Any productive expense will come here. तो मतलब उन्होंने किसी भी expense के आगे अगर direct लिख दिया है तो that will also come in the trading account. Unless and until उसके आगे डायरेक्ट नहीं लिखा है, आप उसे कहाँ लिखे जाएंगे? पीएनएल में. पर जैसे ही उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा आ गया योर डायरेक्ट, तो आप कहाँ लिखेंगे उसको? ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस ट्रेडिंग अकाउंट. नंबर 1 इज दैट कंफ्यूजन आता है हमें क्वेश्चंस में कई बार दिया जाता है कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैरेज आउटवर्ड? कैरेज आउटवर्ड का मतलब है सेल करने के लिए हमें कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हम यूज कर रहे हैं वो कैरेज आउटवर्ड है. अगर हम चीज को लेकर आ रहे हैं तो कैरेज इनवर्ड है. द स्टॉक दैट रॉ मटेरियल दैट वी आर ब्रिंगिंग इनटू द फैक्ट्री दैट इज पार्ट ऑफ कैरेज इनवर्ड. बट इफ वी आर सेलिंग आवर फाइनल प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड देन दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट and this is part of your profit and loss account. So this is one of the key takeaways from trading account. Next, wages and salaries. There is again many a times doubt comes as in salary भी तो वही है, wages भी वही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें?
because in every question you will be given wages and you will be given salaries. So wages किसको दिए जाते हैं? Your labor, ठीक है? And labor, they are working in the factory, and that is why we are using this wages for the trading account, because in the factory they are directly impacting the cost of production, ठीक है? On the other hand, salaries is given to a salaried employee who is working and sitting at your maybe your factory also, but they are not directly making the product. लेबर आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, पर जो एम्प्लॉइज है आपको प्रोडक्ट बना नहीं रहे हैं, वो कुछ ना कुछ और काम में, मार्केटिंग के काम में, सेल्स के काम में, एनी अदर वर्क दे आर रिलेटेड, ठीक है, दे आर सिटिंग एट अ प्लेस, दे आर डूइंग द जॉब, सो दैट इज अ सैलरीड एम्प्लॉय. तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो डायरेक्टली बना प्रोडक्ट को बनाने में नहीं काम आ रहा, वो इनडायरेक्टली काम आ रहा है. अगर ऐसा इनडायरेक्टली काम बात हो रही है, उस सिनेरियो में सैलरीज कहा जाती है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. इट विल नॉट कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. सो दिस इज अ लिटिल डिस्प्ले ऑफ हाउ ट्रेडिंग अकाउंट हैज टू बी मेड. एंड सो वी हैव, ओके, सो क्रक्स अगर बात करी जाए इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, so whenever we are asked to make a trading account, we will make these few things, we will put these few things over here. The opening stock will come on debit side, closing stock will come on credit side, to purchases minus if there are any returns, buy sales if there are any, and my subtracting the if there are any returns. Then direct expenses, these are the list of direct expenses out here. One is wages, carriage inward, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड फ्यूल, ऑक्ट्रा और एनी अदर एक्सपेंस जिसके आगे डायरेक्ट लिख दिया गया है, सिंपल. देन अगर एक्सपेंसेस इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, देन क्या होगा आपको प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पे. इनकम इज लेस देन एक्सपेंस, तो क्या होगा? लॉस, और कहाँ लिखा जाएगा? वहाँ, ठीक है. अब प्रॉफिट यहाँ पे लिखा गया, तो क्या है ये? दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब है? इस फिगर को ऐड करने से मेरी दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल. माई डेबिट विल बिकम इक्वल टू माई क्रेडिट. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय बैलेंसिंग फिगर, ठीक है. अब इस तरफ बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा है तभी यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं. अगर ये ज्यादा और यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं और यहाँ पे बच रहा है, तो क्या हमारा प्रॉफिट होगा? इनकम भी ज्यादा है, एक्सपेंस कम है. ऑन दी अदर हैंड, अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड बैलेंस करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा लॉस. So this is how we prepare loss trading account. Next, we will study profit and loss account in the next video. Thank you everyone for watching. If you like such content, and if you want to see more videos on accounting, so please like, share, and subscribe my channel. Thank you.